ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صوبوں کی کمیٹی کو کورونا محرم کے حوالے سے حکمت عملی پر بریفنگ۔ اجلاس میں سول اور عسکری حکام کی شرکت، صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں۔ مونسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کے بعد کراچی آفت زدہ شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شارع فیصل سمیت شہر کے مختلف علاقوں کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ضلع وسطی، غربی اور جنوبی میں تاحال بارش کا پانی موجود ہے۔ مزید جانتے ہیں انور خان کی اس رپورٹ میں۔ مونسون بارشوں کے ہیوی اسپیل کے بعد شارع فیصل پر اب بھی بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں، جو شہری مشکل صورتحال کے پیش نظر مختلف مقامات پر چھوڑ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ ضلع کورنگی اور ضلع مری کے مختلف درجنوں مقامات پر سڑکیں کھنڈرات اور کچی گلیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ شارع فیصل کے فٹ پاتھ کے برج بھی برساتی پانی کی نظر ہو گئے۔ 40 کروڑ کا جو رین ایمرجنسی پروگرام دیا ہوا ہے جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، یہاں پہ ہم لوگوں نے کوئی نمائندہ، کوئی یہاں پہ جو ہے نا وزیر یا کوئی اپنا یہاں پہ ایک بندہ بھی یہاں پہ پیپل پارٹی کا نہیں آیا ہے۔ یہ سب آتے ہیں، اپنا پیٹ بھر کے چلے جاتے ہیں، باقی اور کوئی کام وام نہیں ہوتا ہے۔ شہر کا ضلع وسطی ہو، ضلع غربی یا ضلع جنوبی، جہاں کی بھی بات کی جائے اب برساتی پانی موجود ہے۔ شارع فیصل پر نرسری، بلوچ کالونی سمیت مختلف مقامات پر نکاسی کا انتظام نہ ہو سکا۔ بلدیاتی اداروں کی آئینی مدت ختم ہونے میں 48 گھنٹے باقی ہیں، تاہم اس سے قبل بارش کے مجموعی طور پر 6 اسپیل کی تباہی کے باوجود کراچی سمیت سندھ بھر میں بلدیاتی ادارے عوام کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر رہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے افضل پرویز سے۔ افضل بتائیے۔ جی بالکل، کراچی میں بارش ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، شہر کی عام شاہراہوں اور انڈر پاسز پر ابھی بھی پانی جمع ہے، تاہم پانی کی نکاسی کے حوالے سے کوئی خصوصی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں لیاقت آباد ٹاؤن میں قائم غریب آباد انڈر پاس سے، جہاں میرے پس منظر میرا کیمرامین کاشی نظامی وہ مناظر تمام دکھا سکتا ہے کہ یہ کوئی دریا کے مناظر نہیں بلکہ غریب آباد انڈر پاس کے ہیں، جہاں ابھی بھی کئی فٹ پانی جمع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو بچوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنائے رکھا ہے۔ بچوں کے پکنک پوائنٹ کے باعث بچے جو ہے اس بارش کے پانی میں انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تاہم ابھی تک نہ کوئی عملہ اور نہ ہی کوئی مشینری نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو شہر کی عام شاہراہیں ابھی بھی پانی میں ڈوبی نظر آتی ہیں، جس کے بعد ٹریفک کے عام طور پر متاثر اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی، کراچی میں شدید بارشوں کے بعد نیا ناظم آباد میں پاک فوج اور ایدھی فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے ARY نیوز کے نمائندے نذیر شاہ۔ بالکل دیکھیں، میں اس وقت نیا ناظم آباد میں موجود ہوں اور کتنے گہرے پانی میں ہوں، یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 100 سے 150 خاندان ہیں جو محصور ہو گئے تھے، اور یہ پاک فوج کی جانب سے اور ایدھی ریسکیو ٹیم کی جانب سے یہاں پر آپریشن کا عمل جاری ہے۔ فیملیز کو یہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے جوان ہیں ان کو گھروں سے لے کر مختلف طریقوں سے ڈمپر میں، ٹرکس میں اور ٹریکٹرز کے ذریعے ان کو ان کے گھروں تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر گاڑیاں بھی ڈوبی ہوئی ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیم ہے، اس سے بھی بات کریں کہ اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ 7 ایدھی ہیں ہمارے، یہ بتائیے گا اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ یہاں پہ ایک کشتی ہماری رات سے چل رہی ہے اور اس میں تقریباً 60 سے 70 خاندانوں کو نکالا ہے، اور ہم تقریباً تیسرے چوتھے خاندان کو نکال لیں، ہم 1 گھنٹے پہلے آئے یہاں پہ۔ جی، یہ خاندانوں کی تعداد کتنی ہے یہاں پہ دیکھیں 60-70 خاندان میں لوگ کتنے ہیں؟ 600 فیملیاں ہیں یہاں پہ۔ 600 اس علاقے میں کہہ رہے ہیں کہ 500 سے 600 فیملیز ہیں یہاں پہ۔ اور یہ اب سی ونگ سے ہی آ رہے ہیں؟ ہم CD آگے تک گھوم کے آئے ہیں، CD اور یہاں تک کہ آدمی کی کشتی بھی میرے خیال سے ڈسبیلنس ہو رہی تھی۔ ریسکیو کی ٹیمیں آپ پہنچ چکی ہیں اور تقریباً 70 خانوں کو اب تک ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ بوٹس کے ذریعے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور مزید جو ریسکیو کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی، کراچی میں گزشتہ روز کی بارش سے KPT انڈر پاس پانی سے بھر گیا، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے وہاں موجود ہماری نمائندہ ہنا دیدار سے۔ ہنا، بتائیے کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची के इलाके क्लिफ्टन में मौजूद केपीटी अंडरपास के पास मौजूद है। कल कराची में तकरीबन पूरे शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद जो कराची तकरीबन डूब चुका था। इस अंडरपास की सूरत हाल हम आपको दिखाएं कि कल तो ये जो अंडरपास है पानी से डूबा हुआ था, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि अंडरपास में बहुत पानी जमा है। निकासी अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं की गई है। इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रैफिक यहाँ से वो गुजर ना सके। तो शहरी इस अंडरपास के बंद होने से थोड़े परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, लेकिन इंतजामिया जो है वो अभी तक अंडरपास से पानी खत्म करने के लिए अभी तक कोई ये मुमकिन नहीं हो सका है कि अंडरपास को पानी जितना भी है वो निकाला जाए। यहाँ पर इस वक्त अमला भी अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा, और शहरियों का यही कहना है, उनकी यही दरख्वास्त है कि इस अंडरपास को क्लियर किया जाए ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो नॉर्मल हो सके। कराची में बारिश के बाद शाहीन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग के नीचे नाला निकल आया है। पार्किंग नाले पर बनाई गई थी, पार्किंग एरिया धंसना शुरू हो गया। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे अरबाब चांडियो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने शाहीन कॉम्प्लेक्स पर जो नाला बना हुआ था, जिसकी सबसे पहले ARY ने निशानदेही की और उसके बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तस्दीक की कि शाहीन कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों की पार्किंगें और बिल्डिंगें इस नाले पर बनी हुई हैं। हालिया बारिशों ने इस नाले को दरियाफ्त किया है एक तरह से, क्योंकि शाहीन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग होने की वजह से ये नाला मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था और किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पर नाला है। लेकिन हालिया बारिशों ने इस बात को जाहिर किया कि जो नाला है वो यहाँ पर मौजूद है और इसी नाले पर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंगें बनाई गई। खुद वजीर आला सिंध का ये भी कहना था कि महकमा बल्दियात का दफ्तर भी इसी नाले पर बना हुआ है, और इस नाले की गहराई और चौड़ाई आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये नाला है, और यहाँ पर कोई इसकी सफाई या दीगर कोई इंतजाम नहीं। अभी तक इस नाले की बहाली की कोई उम्मीद नहीं है। इसको उसकी असल शक्ल में बहाल नहीं किया गया तो फिर शाहीन कॉम्प्लेक्स, उसके पूरे अतराफ, सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस, ये सारी सड़कें जो है इस तरह ही पानी में डूबी रहेंगी जैसे माजी में डूबती आ रही हैं। जी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आला सिंध को टेलीफोन, सूबाई हुकूमत को बरवक्त इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जहांगीर खान से मजीद जानेंगे। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध से रब्ता हुआ और इस रब्ते में सिंध में जो जारी इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनसे मुतालिक बातचीत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वज़ीर आला सिंध को कहा गया है कि मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल से निपटने के लिए अब वो वफाकी हुकूमत से रब्ता करके मदद तलब करें, और उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबे की मईशत को मामूल पर लाने के लिए अपना आइनी किरदार अदा करते हुए सिंध के साथ इस वबा से निपटने के लिए और इस कुदरती आफत से निपटने के लिए भरपूर इमदाद फराहम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध हुकूमत कुदरती आफत से मुताबिक सूबे भर के शहरियों के लिए बरवक्त रिलीफ यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत पूरे सूबे में सरकारी व निजी अमलाक को होने वाले नुकसानात का फौरी तौर पर सर्वे करवाए और इमदादी काम तेज और बहाली अमल को जल्द शुरू किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बारिशों से फूट का शिकार होने वाली सड़कों का काम मुकम्मल करके उसको जल्द अज जल्द किया जाए। बारिशों से पूरे सूबे में नुकसान हुआ है, जबकि काश्तकारों और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। काश्तकारों की खड़ी फसलें गैर मामूली मूसलाधार बारिश में ज़ेर-आब आ गई हैं, लिहाजा सिंध हुकूमत वफाक से मदद तलब करके काश्तकारों का नुकसान जो है उसकी तलाफी करने समेत इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करके शहरियों की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में बारिशों सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का इमदादी ऑपरेशन जारी है। 3000 टेंट, 4000 तिलपार फराहम कर दिए। मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने और पानी दीगर अशिया फराहम की जा रही हैं। इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए 32 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में 56 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि कराची में बारिशों ने मजबूत मकामी हुकूमतों के निज़ाम की अहमियत को उजागर किया है। 22 करोड़ आबादी के मुल्क को 1935 के निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। एक अहल ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क होना चाहिए जो मकामी ज़रूरतों को समझता हो। अपनी ट्वीट में वफाकी वज़ीर का कहना था कि रिवायती इंतज़ामिया और वज़ीर आला औसत दर्जे के हों तो इंतज़ामी उमूर नहीं चलाए जा सकते। आज शहरी सहूलतें नहीं, पुलिस निज़ाम तबाह है और तालीम और सेहत तसल्ली बख्श नहीं।
जब बारिश आती है तो पानी आता है। कराची में पानी आ गया। जब तक कराची को मुल्क की तरह ना चलाएं वो नहीं चल सकता। हमें लोकल गवर्नमेंट का दुरुस्त सिस्टम लाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 18वीं तरमीम का मकसद अच्छा था लेकिन जल्दबाजी में लाई गई। वज़ीर आज़म कहते हैं विफाक से सूबों को इख्तियारात चले गए लेकिन सूबों में निचली सतह पर नहीं गए। कहते हैं ना बारिश आती है तो पानी आता है। जब बारिश आता है तो पानी आता है। तो पानी तो आ गया कराची में। सिंध से इंटीरियर से गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, इलेक्ट होती है, वो वहाँ से वो ज़्यादा उधर पैसा उनकी तवज्जो कराची बिल्कुल यानी खंडर बन चुका है। इसका तरीका पहले अभी तो हम कर रहे हैं काम NDMA के ज़रिए और सिंध गवर्नमेंट हम मिल के अब कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अभी तो 60 टीमें काम कर रही हैं फ़ौज की जो कि अभी पहले तो रिलीफ देंगी क्योंकि इस वक्त बड़ी डिसलोकेशन हुई है, फिर नाले साफ़ करेंगी, उसके बाद सीवरेज सिस्टम कराची का हमने ये फैसला किया और फिर पानी का सप्लाई। इसका जो पूरा हाल है वो इनका मैनेजमेंट सिस्टम बदलना पड़ेगा जो इंशाल्लाह हम अब ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पंजाब और उधर कर रहे हैं KP में। लेकिन इसका हल कराची का सिंध का बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट से, क्योंकि इन्होंने पावर तो चलेगी 80th अमेंडमेंट में इनके पास सूबों में, लोकल गवर्नमेंट में तो पावर नहीं है इनकी। और ये जिसके अंदर ये वाजे है कि सेंटर से सूबों में और सूबे से नीचे लोकल गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर हम जा रहे हैं। जब भी इलेक्शन होगा मेरे ख्याल में हम सिंध भी एक चेंज के लिए तैयार है। पाकिस्तान अब दुरुस्त समत पर चल पड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मईशत में तेज़ी से बेहतरी आ रही है। जुलाई में रेवेन्यू तवक्को से ज़्यादा रही। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी से लोगों की उम्मीदें लौट आई हैं। ऑपोजिशन FATF जैसे कौमी सलामती के मसले पर भी ब्लैकमेल कर रही है। किसी धौंस धमकियों में नहीं आऊँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा पाकिस्तान FATF ब्लैक लिस्ट में चला गया तो मुल्क पर बुरे असरात होंगे। FATF का मकसद है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट आए। FATF चाहता है माली मामलात की मेरिट पर रूलिंग हो। मईशत को दुरुस्त रास्ते पर डाला है। खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हुए तो बहुत नुकसान होगा। भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। का सारा असेंबलीज में ये जो ड्रामा चला है, इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल कभी किसी हुकूमत को नहीं किया गया जो इस मौजूदा ऑपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारे से सिर्फ चाहते थे कि हम NRO दे दें। और ये FATF का असल में कभी भी इस तरह बेशर्मी से एक नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट का ऑपोजिशन जाए अपने ज़ाती चोरी बचाने के लिए, कभी भी नहीं हुआ। अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए या वो महंगाई आएगी, हमारी सारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। मुसलसल 2 साल से हिंदुस्तान लॉबी कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ये ऑपोजिशन को पता होते हुए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ये क्या कह रहे हैं कि हमें 2 काम कर दो, ऑपोजिशन को ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें से कानून FATF में से निकाल दो, और दूसरा नैब, इन्होंने नैब के 34 शिकें पेश किए हैं। जो टोटल 38 शिकें हैं नैब की, उसमें से 34 इन्होंने अमेंडमेंट्स पेश किए हैं जिसका मतलब कि नैब की कब्र दबा के उसको दफना दिया जाए। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन कर रहे हैं। अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया, जो इस मुल्क से फिर FATF की ब्लैक लिस्ट होगा, ये सब जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाक फौज ने उनकी हर कदम पर हिमायत की है। भारत से दोस्ती का कहा, पाक फौज ने साथ दिया। भारतीय पायलट छोड़ा, पाक फौज ने साथ दिया। मोदी को बेहतर इसलिए कहा कि वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। मोदी दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद अपना असल रंग दिखाने लगे। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आवाज़ बुलंद की, भारत बंद गली में फंस गया। पाकिस्तान के दुनिया भर के मुमालिक से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तेवार हुए। ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ कि हर जगह पे पाकिस्तान की फ़ौज ने तो मेरे लिए सपोर्टिंग रोल प्ले किया। हिंदुस्तान से हमने पूरी कोशिश की, दोस्ती की, पूरी पाकिस्तानी फ़ौज ने मेरे साथ खड़ी। हमने जब वो उनका पायलट को वापस किया, पाकिस्तानी फ़ौज साथ खड़ी। हमने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी बेहतर होगा? क्योंकि तारीख़ हमें बताती है कि जो राइट विंग है, जो इनका जिस तरह वाजपेयी था, वाजपेयी जब आए BJP पहली दफ़ा आई तो सब ने कहा कि तबाही मच जाएगी। वाजपेयी एक्चुअली वो इनके लीडर बने जो एक स्टेट्समैन थे। उन्होंने आके बल्कि पीस प्रोसेस शुरू किया, उन्होंने बातचीत शुरू की, कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो गई। हमें क्या पता था? असल रंग तो नरेंद्र मोदी ने जब ये दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुए तो नज़र आए इनके। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान, जो मैं कहता जा रहा हूँ,
स्ट्रेटिजिक ब्लंडर कर गया कश्मीर में। इंटरनेशनलाइज हो गया इशू, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया। मैंने खुद वर्ल्ड लीडर्स को टेलीफोन कर करके समझाया बार बार कि ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है जो कश्मीर में, तो उसकी वजह से ये उनको क्रश नहीं कर सके जैसे इनका प्लान था। हमारी रिलेशनशिप सबसे ठीक है। अमेरिका सबसे ज़्यादा ये इसको समझ आया कि पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया। तो एक तो हमारे उनके ताल्लुकात बड़ी देर के बाद अच्छे हैं। हमारे मिडल ईस्ट के अंदर हमारे सऊदी अरेबिया से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हमारे ईरान से बड़ी देर के बाद अच्छे ताल्लुकात हैं। तुर्की से हमारे प्रॉब्ली बेस्ट ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ दे दूं तो 5 साल सुकून से गुजर जाएंगे। 1 पॉइंट एजेंडा इनका, किसी तरह इनके करप्शन के केसेस से मैं इनको छोड़ दूं। अगर मैंने ये कर दिया, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मेरी गवर्नमेंट चली जाए वो मुझे मंजूर है, जो मर्जी हो जाए, ये जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें, इन सारों का जब तक एहतसाब नहीं होगा ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। आराम से इनसे हम बात कर लें, एनआरओ दे दें, बड़े आराम से 5 साल निकल सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में बीमार थे, लंदन जाकर सियासत शुरू कर दी। नवाज शरीफ को बाहर भेजकर हमने गलती की। नवाज शरीफ को लंदन में सियासत करते देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। आपने एनआरओ दिया, मियां नवाज शरीफ को, और आपकी काबीना ने बाहर जाने की इजाजत दी। ये जो इशू आया नवाज शरीफ का, अब वो माहौल ऐसा बन गया, पहले तो डॉक्टर्स ओपिनियन आए कि जी वो बचेंगे नहीं, उन जान खतरे में है। 6 घंटे कैबिनेट डिबेट, इंडेमनिटी हमने कहा कम से कम 7 अरब रुपए की मेरे ख्याल में कि इंडेमनिटी बॉन्ड दें कि ये वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने गारंटी दी अदालत को, वो बाहर चले गए। जब बाहर गए तो एक नवाज शरीफ यहाँ थे और एक वो अब बाहर हैं। अब हम एम्बेरस फील करते हैं। जो एक पूरा फेट कंपनी प्रेजेंट की गई, हमें अगर आपने कुछ किया ना मर सकते हैं, उनको गुड फेथ में भेजा, हम सब रिग्रेट कर रहे हैं। वहाँ बैठ के वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से, लगता है कि हमारे से गलती हुई। बादशाह ने भी सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ को जाने दो। वो बादशाह कौन थे और उसके अलावा किस किस ने सिफारिश की? इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, आप मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस वक्त था, देखें इनके हैं तो सही, इनके कनेक्शन तो थे बाहर। उन्होंने बड़े पोलाइटली कहा था, ये नहीं कहा था कि ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये होगा। उन्होंने बस कहा था कि जी हमारे ताल्लुकात हैं। अगर मुझे मेडिकल ओपिनियन ये ना कहता कि इनकी जान खतरे में है, मैं फिर कभी ना अलाउ करता। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब बैरिस्टर उस्मान जी राशिद की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दी। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ भी प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा होंगे। प्रोसिक्यूशन टीम शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेश होगी। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ फैमिली से जायद का रेफरेंस दायर कर रखा है। नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और शहबाज शरीफ की 2 बेटियों को नामजद किया गया है। अदालत ने रेफरेंस में सलमान शहबाज और दामाद हारून यूसुफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, जबकि नुसरत शहबाज और दोनों बेटियों को तलब कर रखा है। रेफरेंस में हमजा शहबाज गिरफ्तार, जबकि शहबाज शरीफ जमानत पर हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। सलमान शहबाज के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। सलमान शहबाज के वारंट पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर अमल दरामद किया जाए। रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान शहबाज बैरून मुल्क हैं। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के काबिल ज़मानत वारंट जारी। नैब तफ्तीशी अफसर के मुताबिक नुसरत शहबाज बेटियों के खिलाफ सबूत हैं। शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान जवेरी आली को 10 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कहना है कि बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात करें। वज़ीर आला ने मुताल्लिका इदारों के हुकाम को हिदायत दी हैं कि सड़कों और बाज़ारों में पानी जमा हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश के दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। तफसीलात बाबर खान की इस रिपोर्ट में।
कमज़ोर स्ट्रक्चर की वजह से और पानी इकट्ठा होने की वजह से जब लोड बढ़ा है तो वो बिल्डिंग नीचे गिर गई है। तेज बारिश के बायस लोहे की गार्डर्स पर खड़ी छत गिर गई, 4 अफराद जाम बाग। वाकया सगिया इंटरचेंज के करीब अफजाल कॉलोनी में पेश आया। मट्टी और गार्डर्स पर खड़ी छत पे बारिश का पानी जमा हुआ और छत जमीन बोस हो गई। सुबह मुझे 6:30 बजे इधर से किसी ने टेलीफोन किया है कि आपके गोदाम की छत गिर गई है जिधर आप काम करते हैं। इमदादी टीमों ने इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मलबे तले दब जाने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली। 3 लोग जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो उससे बुनेर से है, एक का ताल्लुक कर्क से है। 4 लोगों की डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं। एक आदमी का शक था, वो वॉचमैन ने भी क्लियर कर दिया है कि उसने इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि वो आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शवाद रशीद के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां, सैलाबी रेलों के बाइस हादसात में 14 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। चलास में लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराकोरम कई मकामात से बंद। रायकोट तचलास शाहराह बंदिश की वजह से सैकड़ों सैयार मुसाफिर फंस गए। तत्ता पानी के मकाम पर गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। PDMA ने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। बाला इजला में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। सवात में 40 जबकि अपर कोहिस्तान में 8 घरों को नुकसान पहुंचा। चलास और गिरदोनवा में 2 दिन से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम कई मकामात पर बंद हो गई। ट्रक लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया, एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। सैकड़ों सैयार और मुसाफिर भी फंस गए हैं। बारिशों से स्वात और अपर कोहिस्तान में नुकसानात की रिपोर्ट जारी, जिसमें PDMA का कहना है कि बालाई अजला में 14 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। स्वात में 6 अफराद, अपर कोहिस्तान में 8 जाँ बहक हुए। स्वात में 40 घरों को नुकसान पहुंचा, 16 घर मुकम्मल मुनहदम, 24 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अपर कोहिस्तान में 8 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। मर्दान में 3 जबकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 2 अफराद जख्मी हुए। और यहाँ आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर हॉकी फेडरेशन की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक सदर हॉकी फेडरेशन खालिद सज्जाद ने हॉकी की तरक्की और तरवीज से आगाह किया। बात करेंगे, लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से लईक। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान PHF की तरफ से जो हॉकी के खेल की तरक्की और तरवीज के लिए और बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं उनके बारे में आगाह किया गया। और आर्मी चीफ की तरफ से इस मौके पर यह कहा गया कि पाक फौज मुख्तलिफ खेलों बिलखुसूस हॉकी की तरक्की और बहाली के लिए कोशिश है, खुसूसी तवज्जो दे रही है। उनकी तरफ उन्होंने ये भी इस मौके पर ऐलान किया कि आर्मी वेलफेयर फंड की में से 5 करोड़ रुपए PHF को फराहम किए जाएंगे, जिसका मकसद हॉकी के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जा सके। ये बताते चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ओकाड़ा और रावलपिंडी में जो स्टेडियम्स है वहाँ पर नई आस्ट्रोटर्फ बिछाई गई है और वो PHF को खेलों के लिए इस्तेमाल के लिए दस्तयाब भी है। बहुत शुक्रिया लईकुर रहमान। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम दरहम बरहम, बिजली की बंदिश से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बुरी तरह मुतासर। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, कोरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कराची, काठौर समेत कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से बिजली बंद है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से शहर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। पानी तो सड़कों पर भरा ही है, लेकिन इसके साथ साथ बिजली की बंदिश ने लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा किया है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन कराची का 80% हिस्सा बिजली से महरूम हो चुका था। के इलेक्ट्रिक के 1000 से ज़्यादा फीडर बंद हो गए थे। मुतादिद PMT भी ट्रिप कर चुकी हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त कराची के तकरीबन हर इलाके में देखी जा सकती है। डिफेंस तकरीबन पूरा बंद है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, काठौर, गडाब, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सैडल बी एरिया, केमाड़ी, बल्दिया, मोजको, ख्वाजा अजमेर नगरी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, शादमान टाउन, इसके अलावा मलीर के इलाके हैं, मॉडल कॉलोनी के इलाके हैं। गर्ज के कराची का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं
है जहाँ पर इस वक्त बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी हो। मोबाइल टावर पे जो बिजली फराहम की जाती है, बाद मोबाइल टावर पर 24 घंटे भी गुजर चुके हैं, वहाँ पर बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। तो इस सूरत हाल की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। बहरिया टाउन कराची में भी शदीद और मूसलाधार बारिशें हुई, लेकिन जदीद निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और निकासी आब के बायस सड़कों पर ना ही पानी जमा हुआ और ना ही गटर उबले। बहरिया टाउन में साफ सुथरी सड़कें बारिश में मजीद धुल गईं और उसके साथ साथ बहरिया टाउन की 12 डैम्स में 167.6 मिलियन गैलन पानी जमा करने की भी गुंजाइश है। बहरिया टाउन कराची में तेज बारिश के बावजूद 24 घंटे बिजली फराहम की गई। इस वक्त मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतजामिया बहरिया टाउन के मुताबिक कराची में बारिशें जदीद निज़ाम के बायस रहमत की तरह बरसी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, निकासी आब के बायस सड़कों पर पानी ना ही जमा हुआ है और ना ही गटर उबले हैं। बहरिया टाउन में साफ सुथरी सड़कें हैं, बारिश में मजीद धुल गई हैं वो सड़कें और इसके साथ साथ बहरिया टाउन के 12 डैम्स में 167.6 मिलियन गैलन पानी जमा करने की भी गुंजाइश मौजूद है। कराची में तूफानी बारिशें, ट्विटर पर कराची रेन टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन की जानिब से शेयर की गई तस्वीर और वीडियोस रोशनियों के शहर के डूबने की दास्तान सुना रही हैं। बादलों के जोश ने कराची वालों के होश उड़ा दिए। कराची में अर्बन फ्लडिंग से क्या कुछ हुआ, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने पौश इलाकों में निकासी के निजाम का पोल खोला, तारिक रोड और डीएचए की वीडियोस भी पोस्ट कर दी। कहीं तैरते कंटेनर्स दिखाई दिए तो कहीं पुलिस मोबाइल लहरों पर रवा दवा देखी। गुलकार फखरे आलम ने घर के बाहर का मंजर शेयर करते हुए लिखा कि कई घंटों से घर वालों से राब्ता नहीं हो सका। अदाकारा समीना पीरजादा ने लिखा कि मेरे खूबसूरत शहर कराची को नजरअंदाज किया गया। मुतासरीन ने डूबे घरों की वीडियोस शेयर की। एक और सारिफ ने गर्मा गर्म पकौड़ों की तस्वीर अपलोड कर दी तो किसी ने लिखा बैटमैन को मदद के लिए बुलाया था लेकिन उसे तो खुद मदद की जरूरत है। एक जिंदा दिल शख्स की पानी में डूबने के बावजूद थम्स अप की तस्वीर भी वायरल हो गई। तो दरियाए चनाब में चिन्यूट के मकाम पर इस वक्त 1,30,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसके बायस 7 देहातों का शहरी इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अमीर उमर चमन से। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त जो है 1,30,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला जो है वो झांग की तरफ रवा दवा है। ये शाम तक जो है यही पानी की सतह बुलंद होते होते 2 लाख क्यूसेक पानी का जो है वो सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा जो झांग त्रिमू हेड की तरफ जाएगा। इस पानी की वजह से चनियोट में 5 जो आबादियाँ जिसमें बुर्ज उमर, झंडे का बुर्ज, बुर्ज बाबल, ये आबादियाँ का इनको जो है वो शहरी इलाकों के साथ रब्ता काट चुका है। ज़िले हुकूमत की तरफ से 5 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और कंट्रोल रूम भी बना दिए गए हैं। तहसील लेवल पर जो है वो अलहदा कंट्रोल रूम है, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलहदा कंट्रोल में जहां पे मुसलसल पानी की सतह जो है आवाम शहरियों को बताई जा रही है। इस तरह रेस्क्यू 11, 22, सिविल डिफेंस और महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा ज़राअत के अमलों को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया और नशेबी इलाकों को लोगों को जो है वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। जी, नौजवानों को रोजगार की फरहमी के लिए हुकूमती इक़दामात में तेजी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और मामून खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात में 1 लाख नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन के जरिए रोजगार की फरहमी पर मुशावरत हुई। तालीमी इदारे खुलते ही टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करने का ऐलान किया गया। उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया है। बात करेंगे, अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा कब ये कार्रवाई अमल में लाई गई? ये पेशावर के नवाई इलाके मतनी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस और इंटेलिजेंस बेस एक बड़ा ऑपरेशन, मुश्तरका ऑपरेशन किया गया जिसमें दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। मतनी के इलाके से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है, जिनके कब्जे से भारी तादाद में बारूदी मवाद बरामद किया गया। SSP ऑपरेशन के मुताबिक बताया जाता है गिरफ्तार दहशतगर्द जो है वो पेशावर में किसी बड़ी तकलीफकारी का मंसूबा बना रहे थे, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में प्राइमकार डेटोनेटर जो है वो बरामद किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अदनान।
वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो से मुतासरा लाहौर के अदनान का पैगाम। इस मोहम्मद की मिसाल अदनान एनर्जी सेवर की मरम्मत का काम करता है। तफसीलात लाहौर से हसन हफीज की इस रिपोर्ट में। बचाव के कतरे ना पीने की सजा, जिंदगी भर की माजूरी, यही कहानी है लारी अड्डे के रिहायशी 29 साला मोहम्मद अदनान की, जो वैक्सीन ना मिलने पर 2 साल की उम्र में ही पोलियो का शिकार हो गया और व्हील चेयर मुकद्दर ठहरी। मुझे 2 साल की उम्र में पोलियो हुआ था और मेरे वालिद ने काफ़ी इलाज करवाया मेरा, ठीक नहीं हुआ तो मैं बड़ा परेशान हूँ और व्हील चेयर पर बैठ बैठ के मैं तंग हो गया हूँ। जिस्मानी तौर पर माजूर लेकिन हौसले बुलंद, जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए अदनान छोटी सी किराए की दुकान में एनर्जी सेवर्स ठीक करता है। पूरी अपील है लोगों से, अपने बच्चों को पोलियो का कतरा पिलाएं ताकि कोई मेरे जैसा ना हो सके। मेहनत और अजमत पर यकीन रखने वाला अदनान हालात की तंगी के बायस हुकूमत से मदद का तलबगार है। ये नौजवान उन वालिदैन के लिए सबक है जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से हिचकिचाते हैं। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। किसी से पूछ लिया करें बयान दागने से पहले, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का। ये आपके ज़माने के कारनामों की वजह से है। आपके आकाओं में से सारे इलाज तो लंदन से करवाते हैं, वो जो बीमार नहीं होते वो भी झूठ बोलकर लंदन भाग जाते हैं। पता नहीं किस तरह और किस मुँह से आप ये बात करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कराची में वफाकी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर बताइए। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास हुआ है कराची के मसाइल को हल करने के लिए और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लेने के लिए। इस इजलास में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर, मुराद सईद और सीनियर अफसरान को भी बुलाया गया है। साथ ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बातचीत करते हुए कहा है कि सूबा सिंध और ख़ुसूसन कराची के अवाम की तरक्याती ज़रूरियात और उनको दरपेश हालिया मसाइल का मुकम्मल इदराक है और वफाकी हुकूमत इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल से ब्रीफ भी किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कराची में सीवरेज, निकासी आब और पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से जामे प्लान बनाकर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एक आगे का लाहेमल जो है वो तश्कील दिया जाएगा। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा है कि कराची के अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वफाकी इदारों को हिदायत कर रखी हैं कि वो रिलीफ के इक़दाम तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध से कराची में हालिया बारिशों के बाद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है और विफाक और इसके इदारों की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। कादिर, बहुत शुक्रिया। और अब हेल्थ न्यूज़। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।